हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी इंडिया। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज हम लोग जियोग्राफी का फॉर्मेशन ऑफ अर्थ ये टॉपिक कवर करेंगे। तो अर्थ का फॉर्मेशन में विल सी दी फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड कॉन्टिनेंट, फॉर्मेशन ऑफ ओशन, एटमॉस्फेयर एंड एट लास्ट द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। सो जो अर्थ का फॉर्मेशन है ये हुआ था अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट along with the formation of the sun. This initial Earth was hot and barren and had an initial atmosphere which is the Earth's first atmosphere, and which were the gases left over from the formation of Earth, and it was consisting mainly of hydrogen and helium gas. These gases were too light and जो अर्थ का सरफेस था was too hot, and because of this these gases which was the first atmosphere of the earth was lost in this space. This initial earth, which was also called as Gaia, collided with another small planet-like body called as Theia around 4.44 billion years before present, and this which is known as big splat or giant splat, and बोला जाता है कि दिस कोलूजन ने ही प्रोड्यूस किया था द प्रेजेंट अर्थ एंड प्रेजेंट मून को, इससे बना था. After this collision, Earth's surface again turned into a molten lava form, mainly due to the heat generated by the collision and also the fact that it was a young Earth recently formed. This led to numerous volcanic eruption on the whole Earth's surface, having no rocky surface or water or atmosphere as of then, and it has gases like water vapor और मोल्टेन लावा, मोल्टेन रॉक्स, ऐश एंड डस्ट, ये सब था. इसमें जो गैसेस निकलती थी इसमें मीथेन, अमोनिया, CO2, CO, ये सारी गैसेस थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी. एंड गैसेस दैट इरप्टेड फ्रॉम द वॉल्केनिक इरप्शंस gave us the second atmosphere of the earth, and this atmosphere also contains water vapor and dust particles such as ash, and gradually ये जो water vapor और dust था it blocked the sunlight that led to the cloud formation from the water vapor and dust particle. उसकी वजह से gradually cooling of the earth start हुआ. The clouds gradually led to the rain which gradually led to the cooling of the earth further, और जो molten lava था उसका surface cool होने लगा, and rain would evaporate again, जो कि मोल्टन वाला गर्म था, उसकी वजह से दोबारा वाटर ड्रॉपलेट बनती थी, क्लाउड बनता था, दोबारा बारिश होती थी, और ये जो है मोर क्लाउड मोर रेन का ऐसा विशेष साइकिल स्टार्ट होने लगा, विच ग्रेजुअली कूल दी अर्थ, और मोल्टन जो लावा सरफेस थी ये रॉकी सरफेस पर टर्न होने लगी, एंड रेनफॉल स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग ओवर दिस न्यूली फॉर्म रॉकी सरफेसेज. There were a period leading to the formation of ocean and the ocean floor. So this is how the ocean and ocean floor was formed. And by now the second atmosphere, which was rich in CO2, methane, ammonia, is formed, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी अभी भी. And also due to cooling of molten lava, a rocky floor of the ocean was formed, and due to the water vapor in the volcanic eruptions, ocean also formed over the ocean floor. And इतना जो फॉर्मेशन था ये 4.44 बिलियन ईयर बिफोर पीरियड टू 4 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट इतना स्टार्ट हुआ, मतलब 0.44 बिलियन ईयर्स लगा इतना होने में, ओशन फ्लोर फॉर्म होने में. एंड उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड कॉन्टिनेंट कैसे हुए, तो जो जितने भी कंपोनेंट थे तो वो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी अपना सेटल डाउन होने लगे. लाइक लाइटेस्ट जो थी गैस, फिर वाटर, फिर सॉलिड, फिर डेंस मटेरियल, एंड हैवीएस्ट मटेरियल वाज एट द सेंटर ऑफ अर्थ. And when we see the process taking place on the earth, we find that as we grow close and closer to the earth center, things are getting heavier and denser, whereas the lightest is the atmosphere, and which is the outermost layer of जो है, उसके बाद दोनों के बीच में लाइटर ओशंस था. And hence we can simply say that towards the center of earth denser material will be there, and whereas outer material are thrown outside by volcanic activities. Based on their density, gravity will organize them, and with being lighter being above and denser being closer to the earth center. And hence जो based on our observation we found that ocean floor rocks are made up of such molten material which is still a mix rocks of lighter and denser rocks. We also know that when we try to slowly heat
and melt a mix aggregate, a coarse mix. Then lighter part separate from the denser part. It is based on this, hence the oceanic floor cracks, which are mixed rocks, relatively dense, slightly go back molten magma region, which are very hot, and this rocks start to melt. Lighter rocks material started to rise upward as it melts and gradually causing another volcanic eruption on the ocean floor. The denser part of the ocean floor mix start to sink downwards. The volcanic eruptions due to the lighter organic material cause lighter magma starts accumulating over the ocean floor and gradually cools down. Being lighter from the ocean floor, the material slowly grows toward the oceanic floor and gradually appears above the oceanic water by displacing the water. And gradually, hence, a lighter rock region grows over the ocean floor surrounded by the ocean, but gradually growing above the ocean. जो this rocky region था, अगर ये small था, it is called as island. Gradually many such islands grows due to volcanic eruptions of lighter rock material at many places. They joined together formed a bigger land that is called continent. And this is how the land, continent and islands were formed. जो है ये भी लगभग 4 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट ये फॉर्म होना स्टार्ट हुआ. And hence we how now we get earth somewhat looking like the present earth with ocean, island, continents and atmosphere. Or continued volcanic eruption which is continued till now are continuously led to the evolution of earth, further formation of earth. And still earth जो है 4 बिलियन ईयर बिफोर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट अर्थ. क्यों? दो चीज़ थी. एक तो सेकेंड एटमॉस्फेयर जो है इसमें CO2 था लेकिन ऑक्सीजन नहीं था. एंड अर्थ हैज़ टिल नाउ शोन नॉट शोन एनी साइंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. जो सेकेंड एटमॉस्फेयर था अलॉन्ग विद द रॉक्स, उसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स थे. ये सारे मटेरियल्स थे जिसमें जो कार्बन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन सूत्रधार है ये था. और ये सारे ही कंपोनेंट दे आर रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल, दे आर केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ. एंड धीरे धीरे कार्बन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स वगैरह बनने स्टार्ट हुए लाइक पॉलीमर्स. जो सिंपलेस्ट जिसका जो वो होता है एग्जांपल होता है मीथेन. और उसके वजह से धीरे धीरे लाइफ के फॉर्मेशन का बैकग्राउंड जो है ये बनना स्टार्ट हुआ. देन विल इफ़ वी सी दी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का तो अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड होते हैं. अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन मिल के बनाते हैं, अमाइनो एसिड मिल के प्रोटीन बनाते हैं. और उसमें जो बेसिक यूनिट होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है. न्यूक्लिक एसिड लाइक RNA एंड DNA. और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो होता ही, साथ साथ फास्फोरस बॉन्ड भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है. तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ होती है दैट इज सेल्स, बट इवन दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स केमिकल मॉलिक्यूलर ग्रुप्स. जो केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स थे और इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ जो है लाइक CHO and P which are already present in the second atmosphere and in the rock in the ocean floor. Even methane, which is simplest organic compound, was also formed in the earth. On the other hand, when we see life, the simplest form of the life is biological cell, which is made up of amino acid and nucleic acid along with the other compounds. And hence even the simplest biological cell is made up of various complex chemical molecules. So what are the conditions required for the complex chemical compound to form? तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें मोबिलिटी, स्टेबिलिटी और एनर्जी ये इसका मिक्स चाहिए होता है. मोबिलिटी जो है के लिए लैंड जो है कंड्यूसिव नहीं था. स्टेबिलिटी के लिए जो है गैसियस जो एटमॉस्फेयर था वो कंड्यूसिव नहीं था. लेकिन जो ओशन था, ओशन प्रोवाइड्स बैलेंस ऑफ मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी. और टू एनर्जाइज द केमिकल्स वी नीड हीट एंड चार्ज. तो जो हीट थी ये जो डीप वॉल्केनिक ओशनिक एरप्शंस हो रहे थे उससे मिलने लगी. तो चार्ज जो था, जो क्लाउड और रेन्स हो रही थी उससे, जो लाइटनिंग हो रही थी उससे एनर्जी मिली. एंड वी सी दैट दी वेरी कॉम्प्लेक्स केमिकल मॉलिक्यूल्स रिक्वायर दी एलिमेंट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन एक्सेट्रा. दीज वर दी
washed down by the rains, making ocean rich of these chemicals. And second, the complex chemical molecule requires the suitable medium which will provide the conditions for many reactions to take place, like mobility of chemicals, as well as led to result in complex molecules remain as it is also stability of the complex molecules of other complexer reaction. This condition was also well fulfilled by the ocean, as a liquid medium provide both mobility and stability, and ocean also provided required water for life. Further, the complex reaction that requires energy, some like heat और इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब भी मिलने लगा है वॉल्केनिक इरप्शंस और लाइटिंग से. एंड हेंस अंडर दिस फेवरेबल कंडीशन समवेयर अराउंड 3.8 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट जो सिंपल सेल लाइफ थी ये इवॉल्व हुई. सम ऑफ द ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म्स एज पर दी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग जो था वॉज आर्कियोबैक्टीरिया, और उसके बाद ग्रेजुअली यू बैक्टीरिया फॉर्म हुआ. तो ये लाइक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स ने मिलकर आरएनए एंड डीएनए बनाया, उससे सेल्स साथ में बनी जो कि बैक्टीरिया था. पहले आर्कियोबैक्टीरिया बना, फिर यू बैक्टीरिया बना, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया बना लगभग 3 to 2.5 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट. और ये फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया थे. दे यूज सनलाइट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन फ्रॉम रिएक्शन, और इनके थ्रू ही बाद में क्लोरोप्लास्ट बना है. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इवॉल्व ऑन द अर्थ बिटवीन 3 to 2.5 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट through the growth of some bacteria which are considered as the precursor जो थे दे को क्लोरोप्लास्ट जो अभी प्लांट्स में होता है इनका उसका पूर्वज माना जाता है, which is the photosynthesizing part of the plant. Mitochondria is part of every living cell which uses oxygen for energy production required for living. And when we see the cells presently, the mitochondria is presently inside the cell. Mitochondria का खुद का डीएनए होता है. तो ये माना जाता है कि इट वाज ऑक्सीजन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया, एंड जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया था वो लाइक साइनोबैक्टीरिया था विच ओरिजिनेट्स क्लोरोप्लास्ट, और ऑक्सीजन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया था ये प्रिकर्सर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थे. तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया का इंगल्फ हो गया उससे एनिमल सेल्स बनी, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों अगर किसी सेल में रहते हैं तो उससे प्लांट्स बने. शुरुआत में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, फिर इट लेड टू फर्दर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स थे और मराइन एनिमल्स थे. प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ग्रेजुअली ओशन गॉट सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन, एंड ऑल्सो दी ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही थी इसने मराइन एनिमल्स को प्रोड्यूस होने में हेल्प की. शुरुआत में जैसे इन्वर्टिब्रेट्स बने लाइक स्पॉन्ज, कोरल्स, जेलीफिश, स्टारफिश, एंड उसके बाद एक्सोस्केलेटल ऑर्गेनिज्म एंड शेल ऑर्गेनिज्म बने, और लाइक क्रैब, क्रस्टेशियंस एंड शेल ऑर्गेनिज्म लाइक स्नेल्स, और मराइन वर्टिब्रेट्स बने लाइक फिशेस लगभग 550 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट. ग्रेजुअली जो है जो ओशन था ऑक्सीजन स्टार्टेड लीकिंग इनटू एटमॉस्फेयर व्हेन ऑक्सीजन बिकम सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन. ओशन बिकम सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, एंड जो सेकेंड एटमॉस्फेयर था 550 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट इट टर्न इनटू दी थर्ड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, जिसमें कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट थी. और इस ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की वजह से मराइन वर्टिब्रेट से लैंड एनिमल्स जो है इवॉल्व होने स्टार्ट हुए, लाइक जो है क्रस्टेशियन से इंसेक्ट्स बनने स्टार्ट हुए, और जो है मराइन वर्टिब्रेट से एम्फीबियंस बने. तो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग जो है दे आर द ट्रांजिशन एनिमल बिटवीन ओशन लैंड्स. एंड उसके बाद रेप्टाइल्स बने लाइक लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल. एंड देन जो है फर्दर इवोल्यूशन में कुछ हेरी एनिमल्स हुए और डायनासोर्स बने. डायनासोर्स बाद में विलुप्त हो गए, और उनकी जो आगे की जनरेशन है उससे बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं. और जो हेरी एनिमल्स थे से जो है मैमल्स बने लगभग 200 से 225 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट. एंड मैमल्स जो थे प्रिमिटिव मैमल्स थे लाइक एग लेइंग मैमल्स लाइक प्लेटिपस. फिर कुछ मार्सुपियल्स थे जिसमें चाइल्ड बैक होता था लाइक कंगारूज, एंड फिर प्लेसेंटल मैमल्स थे. इस तरह धीरे धीरे इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है. तो व्हेन वी thanks to the complex chemical reactions taking place in the ocean which led to the formation of RNA and DNA, single cell giving the different bacteria. ये स्टार्ट हुआ 3.8 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट.
फर्स्ट बैक्टीरिया जो आर्की बैक्टीरिया था 3.8 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट, उससे जो है बाद में फर्दर इवोल्यूशन गिव द फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, और उनसे क्लोरोप्लास्ट बना है। दिस स्टार्टेड द ऑक्सीजन प्रोडक्शन 3 से 2.5 बिलियन बिफोर प्रेजेंट। ऑक्सीजन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया साथ साथ बने जो कि इवॉल्व हुए बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड simultaneously the plant-like organism in the ocean consumes CO2 and which was indirectly coming from the atmosphere, and उससे O2 बनने लगा। एंड इसकी वजह से एवोल्यूशन ऑफ मैराइन लाइफ हुआ, जैसे हमने देखा। ओशन स्टार्टेड सैचुरेटेड एंड ऑक्सीजन लीक होने लगी एटमॉस्फेयर में, CO2 धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी। ये लगभग 3 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट से 550 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट तक ये चलता रहा प्रोसेस। तो CO2 रिच एटमॉस्फेयर था, ये O2 रिच एटमॉस्फेयर में टर्न हो गया। एंड हेंस बाय 550 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट द न्यू कंड्यूसिव कंडीशंस वर अवेलेबल फॉर द लैंड, ऑल्सो फॉर द लैंड एनिमल्स टू इवॉल्व, और उससे लैंड एनिमल्स बनने लगे जो हम लोग ने देखा। प्लेसेंटा एनिमल्स जो हमने देखा था मैमल्स में, उसमें कार्निवोरस थे, हार्बीवोरस थे। कार्निवोरस तो जैसे लॉयन वगैरह है, हार्बीवोरस में हॉर्स, काऊ, राइनोसोरस ये बने। लगभग 85 से 55 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट तक प्राइमेट्स इवॉल्व हो गए, लाइक मंकी एंड लंगूर एक्सेट्रा। एंड ये ट्रीज क्लाइंब कर सकते थे, इनकी हैंड ग्रिप थी और रोटेटिंग आर्म था, जिसकी वजह से दे गॉट सेफ्टी एंड फूड ईजिली। एंड 20 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट तक एप्स बनना स्टार्ट हुए विच हैज़ बिगर ब्रेन एंड दे वर टेललेस एंड ईजियर हैंड रोटेशन इनका था। दे वर एप्स वर डिवाइडेड इनटू लेसर एप्स एंड ग्रेटर एप्स। लेसर एप्स लाइक गिबॉन एंड ग्रेटर एप्स में 15 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट ग्रेटर एप्स बने थे, जिसमें गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान ये सारे प्रेजेंट थे। एंड 8 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट होमोज वर देयर, जो कि ह्यूमन ग्रुप था, ये इवॉल्व हुआ 8 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट इन दी सीक्वेंस ऑफ ग्रेट एप्स। एंड 3 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट होमो हिबिलिस बन इवॉल्व हुए, जो कि हैंड यूज़ करके टूल्स बनाने लगे। एंड 2 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट होमो इरेक्टस इवॉल्व हुए, जो कि जो है स्ट्रेट स्टैंडिंग मैन थे पहले। एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड टू यूज़ द कंट्रोल यूज़ ऑफ फायर ऑन 1 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट। अराउंड 3 to 2 lakhs ईयर बिफोर प्रेजेंट होमो सेपियंस जो है ये स्टार्ट हुए, विच वो जो कि सेपियंस का मतलब होता है इंटेलिजेंस। तो इसमें जो है इंटेलिजेंस का इवोल्यूशन हुआ है होमो सेपियंस स्पीसीज में। एंड नाउ वी आर होमो सेपियंस सेपियंस। तो अगर लैंड एनिमल से लेकर प्रेजेंट तक की स्टोरी को समराइज करेंगे तो फ्रॉम दी ओशन एज द प्लांट एंड एनिमल स्टार्टेड स्प्रेडिंग फ्रॉम दी कोस्ट टू द इंटीरियर्स ऑफ द लैंड and high altitude on the land, it further led to the consuming CO2 and converting it into the organic compounds which forms the body of all living forms, and hence storing a lot of carbons in all the living forms, especially in the plant, and hence becoming the storehouse of atmospheric carbon. Here plants play a role in oxygen producers also, and hence making atmosphere rich in the oxygen further and helping the further evolution of animal and their lungs. When we see the animal evolution on lands, we find that insects evolved from the crustaceans, and from marine vertebrate first amphibians were evolved, and then further reptiles and mammals. Mammals में primates, apes and greater apes बने। greater apes से जो है ह्यूमन फैमिली बनी, एंड जो है ह्यूमन में होमो विच बने, और जो होमो से होमो सेपियंस सेपियंस जो कि हम लोग हैं ये इवॉल्व हुए। तो दिस वाज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ इटसेल्फ, इट्स ओशन, लैंड एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें अपने इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, और जो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं इस टाइप की एजुकेशनल वीडियोस के लिए उनको भेजें। कोई भी आपका फीडबैक हो, कमेंट हो, कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही वीडियोस के लिए, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।